mine detection dog will not be of more height. It will be on the lesser height because Okay. mine के ऊपर weight डालना होता है जब, and should not be heavy dog. Okay. So Okay. or Okay. ED dog can be of any this thing but with a good smelling power. तो इस Okay. तरह Okay. स्पेसिफिक चीजें हर चीज की हैं। और ट्रैकर डॉग का स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, स्मेल भी Okay. अच्छी होनी चाहिए, ट्रैकर और ट्रैकर ट्रैकर डॉग का क्या काम होता है सर? ट्रैकर डॉग का पर्टिकुलर क्या टू काम रहता टू स्मेल एंड ट्रैक, भागना उसके पीछे, है? टेरेस के पीछे, ओके। और उसके उसी को असॉल्ट डॉग बनाते, फिर वो वहां जाके अटैक भी करेगा तो वो असॉल्ट डॉग। ब्रीड है जैसे मुधोल है, तो हाँ हाँ उसको उसकी डिफरेंट उसको ही हम डिफरेंट चीजों में यूज कर हाँ, सकते हैं या? यस 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 कर ओके। सकते हैं। पर पर्टिकुलर ओके। सपोज असॉल्ट डॉग है, उसको एक बार ट्रेनिंग दे दी तो उसको चेंज करने में बड़ा टाइम लग जाता है, पर उसको असॉल्ट ही बनाएंगे। हमारे पोस्ट देयर वाज अ एआरओ डॉग देयर, अवलांच रेस्क्यू डॉग था, जो एक अवलांच आया था तो ही सेव्ड लॉट ऑफ पीपल देयर, बट इन टर्न एक कुमार पोस्ट है ऊपर वहां पर सियाचिन में, तो वहां से उसको लोगों को सेव किया, बट ही हिमसेल्फ गॉट, यू वन शुड सी द पीपल्स रिएक्शन टुवर्ड्स द डॉग होल नाइट। उस यूनिट वाले बंदे उस डॉग की सेवा करने के लिए लगे, क्योंकि उन्होंने ही एब्सोल्युटली। सेव्ड एट ऑफ देम, 8 पीपल ही सेव्ड। कि हॉर्स की स्विंग कैसे की जाती है तो आपको पता होगा, तभी आप चेक करोगे ना कि यार ठीक कर ही नहीं की। तो मैं उसके सामने मैं पकड़ के खड़ा था ऐसे हॉर्स, तो उससे बहुत जोर से लात मारी इधर, जस्ट ऑन माय दिस थिंग, एंड आई फेल फ्लू 10 to 12 फीट दूर। तब वो उस्ताद आके बोला, साहब घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कभी भी नहीं जाना। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. In our previous episodes, we have been bringing eminent personalities from various walks of life and sharing their unique experiences with you of having lived a life less ordinary. In our today's episode of Podcast with Champions, we have a very, very distinguished guest, Colonel Inderjit Sabharwal, sir. He had a dignified and distinguished service of 33 years in the Indian military. He happens to be a qualified veterinarian. He was in the Army Animal Training School. He has qualified as a dog trainer. He has received COS commendation. He has, commanded Army veterinary hospitals. He is a specialist in animal behavior and psychology. And apart from that, various other accolades to his credit. So, ladies and gentlemen, I'll open the floor to Sir. So, welcome to the podcast, sir. Thank you so much, Navjot. Thanks a lot. It's a wonderful being here with you and talking with you and with the viewers, and to tell my experiences of being in army for 33 years. So, privilege is entirely ours to have an audience with you. So, sir, let's turn the clock back to your younger years and what motivated you to join the army, whether it was a family, someone from the family, or what was your inspiration to join the army, sir? Yeah, my inspiration was my parentage, my lineage. I am the third generation Fauji. Oh, wonderful. My grandfather was in cavalry. That is King George owned cavalry. Okay, He okay. was joined the King George owned cavalry during World War I when he was very young, and then managed to go up, and then later on he left. Then my dad was in army. He was a gunner officer, and thereafter then I was, as everybody wants that their children should have a professional qualification. So I joined the vet college, but that joining of Forge was always there. So after completing my veterinary medicine,
and graduation, post-graduation, I joined Renowned Veterinary Corps in the Indian Army as a vet. Okay, sir. So what is the procedure for the audience who would be, willing to join the army in the veterinary corps? What is the procedure to Yeah, get into the service, and how when are the examinations conducted, and where is the training done? So little bit if you can share with the audience. yeah, I was good at NCC. I did other than normal people of 3 year NCC in college. I did 4 year of NCC. I was granted 1 year extension just because of my good NCC records. There I learned, I knew riding earlier also being in Fauji family, so learned riding with an early age. I was very fond of animals, especially horses. So I joined vet college. There was R&V squadrons there attached to all the veterinary colleges. One NCC unit is there, which they impart riding training and tell us about the equines. Because in veterinary college, the equines is not taught that much as other animals is taught. So, keeping up with the NCC, I did a lot of courses, camps together. I was very interested in this. I was senior officer, did Republic Day camp, and won Best Rider Award there. And I have a privilege of having breakfast with the late Prime Minister Rajiv Gandhi, uh, being a best rider. So, and I'm MP since I was in Mau. I did graduate from veterinary college Mau, which as such is a place of big base of Army army. training, army training. My dad was posted there only. So this all things combined together motivated me to join Forge. As my elder brother is also already was in Forge. My brother-in-law was in Navy. So we have basically Fauji family. So it was a motivation per se was always there. सर लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो वेटनरी ग्रेजुएट हैं Yeah, उनके लिए आप क्या बताएंगे कि वो किस तरह से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, एग्जाम कब होता है, कुछ अगर आप yeah, थोड़ा सा बताएंगे. yeah, I'll tell you. उसका ऐसा है कि साल में एक बारी या दो बारी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं माउंट वेटनरी कोर वाले उनकी डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज दे हैव बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कोर and then you have to go for appear for SSB there. SSB is important for us. We have to appear for SSB Service Selection Board, and once you qualify in that, then you are called for medical, and after clearing of medical, merit list is there. Depending on the vacancy, they take the candidates. What are the chances that the candidates can make it to them? Any specialized preparation they need to do? उनको कुछ जरूरत है अलग से तैयारी करने की? बेसिकली क्या होता है कि आपको आपका अपना सब्जेक्ट अच्छा आना चाहिए वेटनरी क्वालिफाई फुल कंप्लीट होनी चाहिए और BVSC and EH that is for it and you should have been qualified as a vet then you can apply for RVC के लिए अप्लाई कर सकते हो आप उसमें आपको वैकेंसी दी रहती है हर साल अलग अलग नंबर की वैकेंसी होती है किसी साल Okay. 10 15 होती हैं और अभी आपको सुन के खुशी होगी कि लड़कियों के लिए भी खुल गया है ये Oh, RVC नहीं था wonderful. इस बार 4 लड़कियां ज्वाइन की हैं इस साल ही उनका कोर्स उनका पोस्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही है अभी आरजी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में इस साल Okay. वैकेंसीज 20 लड़कों की और 4 लड़कियों की 24 बच्चों Okay. ज्वाइन Okay. जिनका वी सिंस वी आर डॉक्टर्स वी डोंट गो टू IMA और NDA फॉर ट्रेनिंग हमारी पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है तो the day we join, we are officers, but we are given post commission training. जहाँ बेसिक ट्रेनिंग होती है 4 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर बेसिक ट्रेनिंग भी कराई जाती है और RVC के तौर तरीके पे उसमें क्या क्या ट्रेनिंग कैसे काम तो करना है ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहाँ पे होती है ट्रेनिंग सर? ये ट्रेनिंग होती है रिमाउंट वेटनरी कोर के RVC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में है मेरठ में जो मेरठ कैंट में है ना सर? मेरठ ओके कैंट में ओके. जो है वहाँ पर ट्रेनिंग सो इट्स अ 4 महीने की ट्रेनिंग बेसिकली होती है. सो उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? बिकॉज ये ज्यादा लोगों को पता नहीं रहेगा कि वेटनरी ट्रेनिंग आर्मी में किस तरह से होती है. सो फॉर द में किस तरह का एनिमल्स होते हैं डॉग्स हैं इक्वाइंस हैं पहले तो गाय भैंस भी होती थी मिलिट्री फार्म में अभी बेसिकली डॉग्स एंड घोड़े हैं खच्चर हैं म्यूल्स हैं उनको कैसे देखभाल करनी है उनका प्रोसीजर क्या है फौजी वे ऑफ प्रोसीजर क्या है वो सिखाया जाता है क्योंकि हर जगह फौज का एक अपना तरीका होता है तो उसके किसी चीज को डील करने का
तो उसके उनके क्या क्या बेसिक्स हैं, उनके सब चीजें उनको सिखाई जाती है। बेसिकली पहले मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती है, बिकॉज बीएमटी इज इम्पोर्टेंट। यू आर अ सोल्जर फर्स्ट, देन ए वेटनेरियन, वंस यू ज्वाइन आर्मी। तो आप पहले सोल्जर हैं, फिर आपको तो सोल्जर के बेसिक्स पूरे सिखाए जाते हैं, राइट फायरिंग सर। से लेके, परेड से लेके, ड्रिल से लेके, पीटी, गेम्स, एवरीथिंग। क्योंकि ऑलरेडी वेटनरी क्वालिफाइड हैं वो जो वहाँ ज्वाइन किया है, तो सिर्फ उनको रिफ्रेश करना है कि आर्मी वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आर्मी के तरीके क्या हैं, कोई किस किस तरह के उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। साथ में आर्मी का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ताकि उनको पता रहे कि जब वो कहीं पोस्टिंग जाए तो उनको पता रहे कि हाँ ये इन्फेंट्री यूनिट है, ये आरटी यूनिट है, ये इंजीनियर यूनिट है, अलग अलग तरीके का। तो ये सब इंफॉर्मेशन उस 4 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इट्स अ वेरी इंटेंसिव कोर्स, और काफी बच्चों को मतलब बिल्कुल और टाइम नहीं मिलता जो कैडेट जो ऑफिसर आते हैं जो वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो क्योंकि ओके सब सर। चीजें फिजिकल फिट भी करना है उनको, सब कुछ करना है, तो इस तरह से वो काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की दी जाती है वहाँ पर। Let's talk about, recently there was this news about the sacrifice of 6-year-old army dog Kent in Rajouri, where he यस, was she was in the line of duty in the 21 army dog unit. डॉग यूनिट, यस So, यस। can you tell us about how these मेरठ में होती है आर्मी डॉग, Mhm, देयर इज अ डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी देयर। आई वाज सीनियर इंस्ट्रक्टर देयर फॉर 1.5 years. So we have trained lot of dogs there. We train dogs as well as the personnel. जो डॉग ट्रेनर है उनकी भी ट्रेनिंग वहाँ होती है, और डॉग्स की भी ट्रेनिंग की है, ब्रीडिंग भी की जाती है और ट्रेनिंग भी की जाती है। तो mhm, वहाँ 4 तरह के डॉग, 4 या 5 तरह, अभी तो और भी बहुत तरीके के डॉग्स की ट्रेनिंग होती है। पहले बेसिकली माइंड डिटेक्शन, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, ट्रैकर डॉग्स, और इन्फेंट्री पेट्रोलिंग डॉग होते थे। अभी mhm, असॉल्ट डॉग्स, एआरओ डॉग्स, एवलांच रेस्क्यू डॉग्स, इस तरह की और भी ट्रेनिंग शुरू की गई है वहाँ पर। तो केंट डॉग वाज एन असॉल्ट डॉग, जिसने जो उसकी स्मेल लेके टेररिस्ट की, जो उसके पीछे भागा और उसको उनका डायरेक्शन बता दिया, तो उसके ऊपर फायर किया टेररिस्ट ने, तो mhm. अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट। Yeah, yeah. So they are Sir, very in good, the excellent species of animal, excellent friends. I have learned a lot from them. Really, if you are his master, they will totally die for you in the wherever they are. सर ये आर्मी जो कैनाइन स्क्वाड, ये डॉग स्क्वाड है, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं ये डॉग? डॉग स्क्वाड का ऐसा होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी में भर्ती होती है, जो जवान होते हैं, वो उसमें उनका फिर वहां पर एक टेस्ट लिया जाता है कि वह कि वो डॉग की देखभाल कर सकेगा। जो उसमें क्वालिफाई होते हैं कि हाँ भाई ये बंदा पैशनेट है, ये डॉग्स की देखभाल कर पाएगा, उसी को फिर ये डॉग ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे किसी भी आदमी को, बिकॉज पीपल डोंट जनरली लाइक डॉग्स एज पर से, क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में डॉग को इतना अच्छा समझा नहीं जाता। ऑफ कोर्स इन द अर्बन सोसाइटी ऑफ कोर्स इट इज देयर, पर रूरल सोसाइटी में इतना ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। बट तो इसी से उनको फिर उनका जो उनकी मेंटल एबिलिटी, उनका पैशन, उनका सब देखा जाता है कि वो देख अपना उनको लाइकिंग है डॉग की या नहीं, इसीलिए उनको फिर चूज किया जाता है। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए फिर वो डॉग ट्रेनर की ट्रेनिंग करते हैं। तो उनको फिर सिखाया जाता है कि कैसे डॉग को हैंडल करना है, ट्रेन करना है, साफ सफाई करनी है, कैनल कैसे रखना है। सो कई उसके स्टेप्स अलग अलग हैं। सर डॉग्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है इसको, मतलब आर्मी में हाँ, लाने के ओके। लिए कैसे डॉग्स को हम उसका सिलेक्ट करते हैं? उसका भी ऐसा ही एक जब पप्स ब्रीड होते हैं, तो अ, उनकी भी हर 2-2 3-3 महीने के बाद एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठता है। वो कुछ क्वालिटीज डॉग्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी एजिलिटी कितनी है पप की, वो कितना एजाइल है, कितना फ्रेंडली है, कितना उसके अंदर ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नहीं है। एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठता है जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ले डाउन है, जो उनको ऑब्जर्व करता है। फिर वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर रिकमेंड करता है कि ओके ये डॉग फिट है ट्रेनिंग देने लायक। 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद फिर उसका एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठता है, फिर उसकी डेवलपमेंट की जाती है,
ओके, फिर वो डेवलपमेंट चेक करते हैं, बताते हैं कि ये डॉग ट्रैकर डॉग बन सकता है, ये डॉग इन्फेंट्री पेट्रोल बन सकता है, ये डॉग ईडी बन सकता है, ये एमडी बन सकता है। उसके भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस पर ले हम्म। डाउन है। फिर वो उस पे उनको फिर उस बांट दिया जाता है। फिर उनको बेसिक ट्रेनिंग के लिए दे के फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए उनको फिर डॉग्स को अलग अलग भेजा जाता है। ओके ओके सर, ये एक ब्रीड है जो ग्रेट स्पेनिश, जो माउंटेन, दिस ब्रीड, एंड देयर आर सर्टेन अदर इंडियन ब्रीड लाइक मुधोल हाउंड्स। तो ये मोडोल डिफरेंस क्या होता है? हाँ, इंडियन ब्रीड्स में और जो हम स्विस ब्रीड है हमारी, जो लॉकर स्पैनियल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस आता है? और मतलब किस तरह से उनकी इंटेलिजेंस को, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे उनको लिया जाता है डॉग्स को। यस, और इंटेलिजेंस की बेसिस 2017 में ही हमने इंडियन ब्रीड जो मुधोल हाउंड है, इसको लाना शुरू किया। तो लाना वो शुरू किया हमने। और इन इंडियन ब्रीड को दे आर पहले कितना ट्रस्ट ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता था? मतलब व्हाट वाज द रीजन? actually their availability was also less, and moreover they were never tried. They were ओके ओके। actually आर्मी के अंदर, बिकॉज जवान पोस्टिंग चले जाते हैं, दे वर नॉट ट्राइड अर्लियर विद दैट मच। पर अभी मुधोल हाउंड्स को द्वारा जब इंडियन उसको चेक किया, शुरू देखा, तो दे आर वेरी वेरी फास्ट, वेरी गुड एट असॉल्ट, वेरी इंटेलिजेंट। दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ साउथ में मुधोल हाउंड बेसिकली साउथ की ब्रीड है। तो वहां पर पुराने राजा महाराजा इनको शिकार के लिए रखते थे, शिकार के हम्म। साथ जाते थे, तो दे यूज्ड टू रन वेरी फास्ट एंड कैच द शिकार जब वो ओके उसको ओके। शूट करके पकड़ के लाते थे। दैट वे इट इज वेरी नाउ। मुधोल हाउंड है एक ऐसे करके इंडियन ब्रीड यूज करने के लिए, देयर एंड दे बिकम वेरी यूजफुल थिंग्स, दे आर बीइंग यूज्ड नाउ ओके वेरी वेल। ओके 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 सर, और ये कश्मीर वैली में, आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल, इट मेंशन दैट these canine squad is the first to respond in the anti-terror यस, operations. So यस। we trust our dogs more than to be in the नो, line of fire? no, no, not that, because they have that smell, that quality is there with them, so they can track the terrorist, like जो कैंट वाला आपने बताया, जैसे Yes, और भी yes. मैंने वहाँ एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी देखा है। दे हैव दैट Okay. ग्रेट स्मेल, द ग्रेट, बिकॉज उनकी सुनने की और स्मेल करने की शक्ति बहुत ज्यादा है Mhm. हमसे। तो दे आर एबल टू डायरेक्ट वेरी, कोई दूर से भी हो तो। मेरे साथ भी कई एपिसोड वहाँ हुआ था। मेरे साथ तो क्या एपिसोड वाज देयर इन बारामूला, एक बस के अंदर एक अपना ये एक्सप्लोसिव वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। नोबडी वाज एग्रीइंग कि द एक्सप्लोसिव वो लेके जा रहा है, उसके पास था। दो एवरीबॉडी गॉट डाउन। दो ट्रैक वो डॉग एक्सप्लोसिव ईडी डॉग लगाया हमने, जैसे ही लगाया तो उसने फट से सीधे बंदे को पकड़े जिसके पास था, क्योंकि उसके पास स्मेल आ रही थी वो। तो Mm-hmm. दे जस्ट कैन नॉट गो अवे विद फ्रॉम द डॉग। वैसे Absolutely. ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, पर डॉग एरर इज नॉट पॉसिबल। आई हैव नेवर They have सीन इट। very, very strong sense of smell they have. एब्सोल्युटली, दे कैन स्मेल यू So, इवन इफ यू आर फिजिटी। अभी जैसे कोरोना में, कोरोना के लिए भी हमने ट्रेन किए थे डॉग, आरबीसी ने भी ट्रेन किए थे। अभी हमारे जैसे अब एयरपोर्ट है, आर्मी का एयरपोर्ट है, जवान आया बाहर से, छुट्टी काट के आया, तो दे यूज्ड टू पुट mhm. स्मेल के लिए, तो कोरोना डिटेक्ट कर रहे थे। तो दैट वे इट इज बीइंग यूज्ड वेरी यूजफुली। So, for the benefit of the audience, RVC's Remountain Veterinary Course Center and College in Meerut. Those who don't know what is RVC, sir is talking about. Sir, RVC जो बात कर रहे हैं, that is Remountain Veterinary Course Center at Meerut, जहाँ पे वेटनरी कोर की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, सर, इसके साथ जैसे आपने बताया कि जो आर्मी डॉग्स हैं, कैनाइन स्क्वाड है, उनकी बहुत ही हाइटन सेंस ऑफ रिसेप्टिविटी होती है टू सर्टेन स्मेल्स। तो हम उसको उनको ट्रेन कैसे करते हैं एक्सप्लोजिव्स के लिए, या आईडीज के लिए, या माइन डिटेक्शन के लिए, या फिर कॉन्ट्राबैंड भी कई बार डिटेक्ट करना पड़ता है, ड्रग्स को? तो वहां पे डिफरेंस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है? और जो यस। उनके हैंडलर और जो उनके हैंडलर होते हैं, उनको भी स्पेसिफिक किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है सर? हाँ, हैंडलर को भी ऐसी ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। दो दे कैन हैंडल देयर ड्यूरिंग देयर बेसिक ट्रेनिंग ओनली, दे आर टॉट हाउ टू हैंडल ईडी डॉग और एमडी डॉग और ट्रैकर डॉग। सिमिलरली डॉग्स को भी ऐसी अलग अलग तरीके से ट्रीट जाती है। लाइक आपको मैं इसमें एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। माइंड डिटेक्शन डॉग विल नॉट बी ऑफ मोर हाइट, इट विल बी ऑन द लेसर हाइट, बिकॉज ओके। माइंड के ऊपर वेट डालना होता है। जब उसके ऊपर माइंड यस। डिटेक्ट करेगा तो उसको वेट तो चारों पैरों पे वेट और नीचे एज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होना चाहिए, सो दैट इट डजंट एक्सप्लोड।
and should not be heavy dog. Okay. So, Okay. or Okay. ED dog can be of any this thing, but with a good smelling power. उसकी पावर Okay. सूंघने की it should trail well. It should trail well. Okay. मतलब it should go walk along the ground. तो इस Okay. तरह Okay. स्पेसिफिक चीजें हर चीज की हैं। और ट्रैकर डॉग का स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, स्मेल भी ओके। अच्छी होनी चाहिए, ट्रैकर और ट्रैकर ट्रैकर डॉग का क्या काम होता है सर? ट्रैकर डॉग का पर्टिकुलर क्या टू काम रहता टू स्मेल एंड ट्रैक, भागना उसके पीछे, है? टेरेस के पीछे। ओके। और उसके उसी को असॉल्ट डॉग बनाते, फिर वो वहां जाके अटैक भी करेगा, तो वो असॉल्ट डॉग बन जाता है। ओके। 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 तो सर तो कोई मल्टीपल टास्क हो जाते पर्टिकुलर ब्रीड्स होती हैं जो माइंड डिटेक्शन में यूज होती हैं, या उसी डॉग को डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्रेन किया हैं। जाता नो है? नो, एक डॉग को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। नो माइंड नो सर, डिटेक्शन डॉग है तो माइंड। आई वाज आस्किंग कि जैसे कोई एक ब्रीड है, जैसे मुधोल है, तो हाँ हाँ उसको उसकी डिफरेंट उसको ही हम डिफरेंट चीजों में यूज कर हाँ, सकते हैं या? यस यस यस, कर ओके। सकते हैं। पर पर्टिकुलर सपोज असॉल्ट डॉग है, उसको एक बार ट्रेनिंग दे दी, तो उसको चेंज करने में बड़ा टाइम लग जाता है, पर उसको असॉल्ट ही बनाएंगे। दूसरा असॉल्ट मधोल ही डॉग एक बनाएंगे। और है, उसको फिर आपको दूसरे डॉग ट्रेनिंग दे सकते हो आप। ओके। लाइक ओके। तो लेब्राडोर हाँ, है। लैब डॉग हम ईडी में भी यूज करते हैं, एमडी में भी यूज करते हैं। राइट तो सर। ट्रैकर में भी यूज करते हैं, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग डॉग है, ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द उसका स्टेमिना, उसकी रिस्पॉन्सेज कैसे हैं उस टेस्ट के लिए। ओके। ओके। तो सर जैसे इसमें मतलब जो डॉग्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी देर होती है? 3 से 4 महीना, है कितनी देर तक उनको ट्रेनिंग दी नहीं, जाती है? उनकी ट्रेनिंग 7 से 8 महीने भी होती है, ओके। स्पेशलाइज ओके ट्रेनिंग। सर। बेसिक ओके। ट्रेनिंग ओके। 3 महीने की होती है। उसके बाद ओके। 6 से 8 महीने तक की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग ट्रेड्स की। ईडी की अलग है, एमडी की अलग है, ट्रैकर की अलग है, सॉल्ट की अलग है। ऐसी हम्म। अलग अलग उनके शेड्यूल अलग अलग बनते हैं। सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रही और आपका तब एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने ओके, ट्रांजिशन की? तो क्योंकि वहां पे आपको जब नया आपने ज्वाइन किया होगा तब आपके लिए भी एक या ट्रांजिशन फेज रहा हो, सो हाउ डिड यू हाँ, एक्लेमेटाइज? my first posting was in Shimla, though I ओके। never stayed in Shimla per se, very few times, because I was young officer, so I was being sent ahead, आगे चाइना बॉर्डर पे और उधर अलग अलग बॉर्डर पे। एंड आई वाज न्यूली मैरिड दैट टाइम, तो शिमला में वैसे भी वो ज्यादा रहने नहीं देते थे। देन आई स्टेड अबाउट 1 year प्लस देयर, एंड देन आई वाज पोस्टेड टू ले। आई वाज इन डिबेट क्वार्टर, and there it was very good experience. For 2.5 years I was in Leh, and good experience in that ki I was posted in headquarter, so I used to keep moving around the whole sector, जहाँ पे किसी को रिलीफ देना है, किसी को एडिशनल वेट कवर देना है, या एडिशनल दिस थिंग, तो आई यूज्ड टू कीप मूविंग। तो आई हैव विजिटेड द होल ले एंड dak because of that. I've crossed all the passes a number of times. मतलब Khardungla was less like just passing, going across. It's like anyway. So तो सर हाई। ओके। ओके। yeah, so Leh was very good experience. We had a good Ladakhi people there who were our helpers or buddies or this thing. So I'll tell you one very interesting thing happened. Um, I was to come on leave. जैसे अक्टूबर में छुट्टी छुट्टी सब जाते हैं, तो मेरी वाइफ भी साथी थी, तो उनको छोड़ना था क्योंकि विंटर्स ज्यादा सीवियर हो जाते हैं वहां पर। तो तब उस टाइम पे एक ही एयर इंडिया की फ्लाइट आती थी वहां पर, इंडियन एयरलाइंस की, हफ्ते में एक बारी। तो उनकी फ्लाइट बुक थी और मैंने सैटरडे को कोरियर से आना था। तो हम्म। तो जो फ्लाइट वो, अच्छा, सडनली बोला गया कि एक म्यूल सीवियरली बीमार होके, एंड इट हैज पास्ड अवे, आपको पोस्टमार्टम करने जाना है उसको। अ प्लेस कॉल्ड थांकुन पोस्ट, हम्म। इन थांकुन पोस्ट इज देयर, विच इज वेयर, जहाँ 62 का वॉर हुआ था। ओके। वहां पर एक वहां पर एक म्यूल है, वहां पर मर गया है, वहां पर आपको पोस्टमार्टम करने जाना है। तो मैंने कहा मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ। कहते नो नो, यू आर यंगस्टर, यू हैव टू गो देयर। तो पीछे से शी फ्लाइट वाज नेक्स्ट डे। तो आई टोल्ड वन, रिक्वेस्टेड वन ऑफ माय जो ऑफिसर्स थे वहां पर कि इनको चढ़ा देना, मैं जा रहा हूँ। तो आई वेंट देयर, आई केम बैक, शी वाज टू लीव। तो जो सहायक था हमारा, एक लद्दाखी था, वेरी नाइस चैप। तो वो मैडम वाइफ को बोला कि आप, बिकॉज ही सेड कि ये उतार जो लगे हुए थे पेंटिंग वेंटिंग उतार दो, बिकॉज साहब ने भी छुट्टी जाना है, और आप इसको पैक कर दो। तो ही गॉट सो सेंटिमेंटल कि मैं, मैडम छोड़ के जा रहे हो आप साहब को, साहब वापस आ जाएंगे, साहब थोड़ी देर के लिए गए हैं,
आप साहब को छोड़ के मत जाओ, तो कि आपने नाराज होके मत जाओ कि साहब ऐसे कहीं बाहर वो दूर छोड़ के नहीं गए आपको। तो ही वाज सो सेंटिमेंटल, वही सर कि नहीं नहीं मैं छोड़ के नहीं जा रही उनको, हम छुट्टी जा रहे हैं, साहब को भी छुट्टी जाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैक कर दो। तो दैट पर्सन गॉट सो सेंटिमेंटल कि कहीं मैडम नाराज हो गई है कि साहब को कहीं दूर भेज दिया है बॉर्डर पे, इसलिए उनको छोड़ के जा रहे हैं। हम्म। So this is what happened, and then ओके ओके। it was wonderful. And once I was our post, there was a ARO dog there, avalanche rescue dog था, जो एक avalanche आया था, तो he saved a lot of people there. But in turn, एक कुमार पोस्ट है ऊपर, वहां पर सियाचिन में, तो वहां से उसको लोगों को सेव किया, बट ही हिमसेल्फ गॉट क्वाइट चिल्बलेन और उसका हाइपो हो गया। अब वहां पर तो कोई था नहीं नियरेस्ट, वहां पर उसको रखा, तो मेरे को वहां से फिर वीओ को आई वाज टेकन बाय चॉपर देयर टू द दिस थिंग, आई स्टेड नाइट विद द डॉग, सेव दैट डॉग। वो अगले दिन चॉपर से सुबह सुबह चॉपर से इवैक्यूएट किया उसको वापस श्रीनगर इवैक्यूएट करके, देन आई केम बैक। सो दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस आई कुड सेव, एंड दे you one should see the people's reaction towards the dog whole night। उस यूनिट वाले बंदे उस डॉग की सेवा करने के लिए लगे, क्योंकि उन्होंने ही एब्सोल्युटली। सेव्ड एट ऑफ देम, 8 पीपल ही सेव्ड, एवलांच से उनके नीचे गिर गए थे, और अपने दे आर आप को आल्सो उसने, सोल्जर्स, दे आर आल्सो या सोल्जर्स सर्विंग। एंड दैट दोज यूनिट पीपल वर होल नाइट दे वर, बोले मेरे साहब आप सो हम इसको मालिश करते रहेंगे, तो होल नाइट आई वाज राइट आल्सो देयर, बट राइट यू राइट। शुड सी द रिएक्शन that day, and next day everybody took him to हेलीकॉप्टर आएगा साहब, आज पक्का मंगवाएंगे हम हेलीकॉप्टर, और उन्हें आग लगा, स्मोक ये दिखा, बिकॉज इवन दो पाकिस्तान वो सामने फायरिंग करते थे वो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट द डॉग इज फॉर द सर आर्मी। जो हाई हाई एल्टीट्यूड में जो डॉग्स की कुछ अलग स्पेशल ट्रेनिंग होती है, बिकॉज जो प्लेन्स में और हाई यस एल्टीट्यूड में यस थोड़ा कुछ तो यस डिफरेंस यस, होना पड़ेगा। बहुत सो डिफरेंस व्हाट इज होता द है। डिफरेंस? दे आर एक्लेमेटाइज टू दैट, बस एक्लेमेटाइजेशन भी कराते हैं उनकी, उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हाई एल्टीट्यूड में ही होती है। जैसे अपने ओके। आर्मी डॉग्स की ट्रेनिंग हम कहीं और कराते हैं, जैसे अपना हॉज है, एक जगह है जहाँ ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ पर जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी होती है और इनकी भी ट्रेनिंग वहीं पर स्नो में कराई जाती है, स्पेशली द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है, तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक ट्रेनिंग नीचे होती है, बाकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अवलांच वहीं कराती है, और जब भी उसको डिप्लॉय करते हैं एआरओ डॉग को, तो उसकी एक्लेमेटाइजेशन करा के ही आगे डिप्लॉय करते हैं। ओके सर। सो जो डॉग्स में इंट्यूटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, जो ताकि वो सोल्जर्स को असिस्ट करें, कि ये भी मैं हाँ, कहीं पढ़ रहा था कि डॉग्स में इंट्यूटिव एबिलिटीज भी डेवलप की, वो कैसे होता है सर? हाउ इज दैट डन उनके see अंदर? these are part of the training process only। हम्म। You see, you have to take out the best of the dog, and so they are given that kind of training। तो अपने आप ही डॉग की एक इनबिल्ट एबिलिटी है, जो जो इट कम्स आउट एज यू गिव द ट्रेनिंग टू हर। बेसिकली इट्स अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो सिस्टम है, दैट इज बेसिकली अडॉप्टेड, दैट इज द बेसिक थिंग टू बी हम्म। अडॉप्टेड इन द डॉग टू ट्रेन। एंड उसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी, हर ब्रीड की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, विच वी ऑल नो। तो हम्म। उसको बेसिकली एवरी टाइम एंड देन वी keep giving them the training, repeated trainings, so that that quality comes up, and when you need them they react accordingly। ओके ओके। सो सर, जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, तो हाँ जी, वहां पे जो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनको बार्किंग भी उनकी कंट्रोल की जाती है, ताकि yes वो हैंड जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स से उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए। yes, तो that is दिस इज part of the वेरी training, इंटरेस्टिंग। that is the एनी way of how इंटरेस्टिंग we स्टोरी ऑफ दैट? एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दैट, इफ यू कैन रिकाउंट विद द ऑडियंस, कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ये you don't let them bark, that because park training, because depending, because that gives out the position उनकी, तो उनके इशारों से, and with the tug of the leash, they, or with the chutki, with the or slow whistle, they, those are the training methods which they are being taught, especially the जो
ट्रैकर डॉग्स हैं या एवलांच डॉग है, एवलांच वाले को तो बिल्कुल बार्क नहीं करता वो, इट जस्ट गिव द डायरेक्शन, नोज पॉइंट करता है वो सिर्फ। तो उसी तरह ओके की उनको ओके ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके ऐसे ही ओके। ऐसे ही आईडी के लिए, आईडी वाले जो होते हैं उनको भी बार्क नहीं करना, दे ओनली गिव द डायरेक्शन और दे सिट डाउन वेयर एवर द आईडी इज, दे विल नॉट बार्क देयर। ओके ओके ओके। सर कितने साल की जब होते हैं, ये कितने महीने के होते हैं जब इनको रिक्रूट किया जाता है डॉग्स को? डॉग्स के तो ब्रीडिंग करते हैं, सेंटर में ब्रीडिंग करते हैं, अब और ब्रीड 6 महीने बाहर का। बाहर से नहीं लेते हैं, मतलब अंदर ही ब्रीड बाहर होते से हैं सारे? बहुत कम लेते हैं, अभी लेते हैं जस्ट टू कीप अप द मेक अप द डेफिशिएंसीज, ओके बट ओके वो 6 महीने से कम नहीं लेते, 6 महीने वाले को लेते हैं फिर। ओके ओके ओके। तो रिटायरमेंट क्या इनका रिटायरमेंट, या इनको रैंक दिया जाता है? डॉग्स को भी रैंक दिए जाते हैं? रैंक तो नहीं दिया जाता, बट ऑफ कोर्स कमेंडेशन कार्ड्स एंड मेडल्स दे गेट, जैसे सेना मेडल मिला है गैलेंट्री का उसको, जो अभी ओके डॉग ओके डेथ हुई थी जिसकी, क्या और जी? बाकी कमेंडेशन कार्ड्स तो बहुत मिलते हैं, चीफ के भी और हम्म। आर्मी कमांडर्स के भी। एंड ओके ओके। बाकी रिटायरमेंट ऐसा है उनको, आज पहले तो उनको कर देते थे, कैजुअलिटी कर देते थे उनकी, बट अभी उनको दे हैव गॉट अ रिटायर्ड, उनका होम बनाया हुआ है, और somebody who wants to take them to keep them with them, they are given on that, मतलब anybody can रिहैबिलिटेशन take के लिए अडॉप्ट कर सकते rehabilitation। हैं? Yes, we अडॉप्ट have कर got rehabilitation center में ही जगह बनाई हुई है, and if anybody wants to adopt their dogs, they are most welcome। क्योंकि सर मेनका गांधी ने एक वो कैंपेन चलाई थी कि जो हाँ, आपने बताया, जैसे कि डॉग्स को किल कर दिया जाता था आफ्टर दे रिटायर्ड, तो yes, अभी yes, वो शायद जैसे अडॉप्शन के लिए वो कर दिया गया है। तो हाँ, हाँ, आपको व्हाट इज योर थिंग, लाइक जैसे एनिमल क्रुएल्टी के भी काफी इंसिडेंट्स आते हैं, तो आप हाँ, एक वेटरनेरियन रहे हैं, तो आपका क्या इस चीज में yes, रुझान है कि किस the तरह से एनिमल वेलफेयर की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि the only आपने जैसे एनिमल हाँ, साइकोलॉजी भी आप सब समझते हैं, तो थोड़ा सा एक इन डेप्थ एनालिसिस हमारे ऑडियंस को बताइए अगर आप। देखो ऐसा है कि वो जो डॉग को आफ्टर 10 years या उसकी सर्विस के बाद उसकी कैजुअलिटी करने की जो उसके अंदर, उसके बिहाइंड जो एम था कि द डॉग हैज लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ इन आर्मी, लुक्ड आफ्टर वेल, उसको उसके बाद उसकी ऐसी जिंदगी ना मिले जिससे कि वो उसको उस लाइफ को मतलब बोले कि मुझे ऐसी जिंदगी के बाद ऐसी वाली जिंदगी मिली है कि जहाँ उसको खाना भी ना मिले, उसकी ग्रूमिंग भी ना हो, कोई लुक आफ्टर ना करे उसकी। सो दैट्स व्हाई इट वाज बेटर टू पुट टू स्लीप देन टू लेट हिम लिव इन दैट दैट काइंड ऑफ लाइफ। बट हम्म। सिंस अभी अवेयरनेस दुनिया में बहुत हो गई है, पीपल ऑल्सो लाइक कीपिंग डॉग्स, कीपिंग पेट्स, तो इसी वजह से ये फिर दिस वाज मेड कि ओके वी कैन गिव इट टू समबडी हु loves animals, who will like can keep animals properly and would look after them as they were being looked after in while they were in the service in the army. So keeping हम्म। that, anybody who asks for it, तो पहले उसका देखा जाता है कि वो किस कहाँ का रहने वाला है, कैसे रहता है, how does he stay, whether he will be able to look after that animal or not, then only it is given on adoption. That was the ओके maqsad behind it. Of course, looking after this animals ki, you see a lot of stray animals are there in the country. This is thing. Ab up, I don't. I am not for killing animals. That's for sure. But keeping in the views, you see the number of rabies cases. The carriers, they're one of the main source. The stray dogs are one of the main source of carriers. सो बट See the number of वी rabbit. कैन वी कैन devise another alternative for that Yes, rather than. yes. So, but to check human rabies in humans and other passage of rabies, you can always उसकी उनकी sterilization करो, उनके के स्टरलाइजेशन इज गुड आइडिया। rehabilitation centers बनाओ, so that they don't propagate that kind of disease and this thing there. But that राइट। is वो फौज के purview से बाहर है. Though we try to help them out, help civilians, civil people out, civil governments out, rehabilitation, sterilization करते हैं, NGOs के साथ मिलके भी करते हैं. I was myself doing it in Bareilly, but response from the fraternity other than army is not that very good for this thing.
होता क्या है कि आई कीप डूइंग स्टडीज ऑफ रेबीज एंड दिस थिंग, बहुत ज्यादा है। इट्स रेबीज इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। इसी हॉस्पिटल में जाओ, रिपोर्टेड केसेस तो खैर बहुत कम होते हैं, नॉन रिपोर्टेड केसेस बहुत होते हैं। एंड दिस इज नॉट ए गुड डिजीज which to happen to anybody. Okay. But of course, you should not kill animals. That I'm for that. But control measures has to be adopted very seriously to not to Right. spread it. So what do you think? Why do animals sometimes, the man animal conflict, the man animal association, not just with the dogs, but we see in areas where we have tiger reserves, a cheetah or a leopard coming into, habitation में आ जाते हैं वो, फिर Because वहां we पे are going उनका, to their habitat, we are moving into their habitat. They're coming into our habitat. so We have what cut can be down done? jungles. हम क्या कर सकते हैं उसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए? You see, we have to provide them alternative places to live. जैसे पानी, और जब पानी का स्ट्रीम एक पर्टिकुलर तरह बह रही है, अब वो पानी के स्ट्रीम के पास आपने हाउसिंग घर बना दिए, वो पानी पीने कहाँ जाएगा? पानी की स्ट्रीम तो वही है ना। Either you provide some alternate पानी का reservoir, direction. Forest people should have a particular way of कि हाँ उनके एनिमल जो मूव करते हैं उनका डायरेक्शन उस तरफ मूव करो कि जहाँ यहाँ हैबिटेशन आ गई, यहाँ से नहीं जाए. So these all measures they have to think. Forest people and of course the people who are developing the jungle side or whatever this thing, they have to think that way. Otherwise तो ये naturally this they will come, क्योंकि उनके वो तो वहाँ कई सालों से रह रहे हैं एनिमल्स, मैन तो अभी मूव किया वहां पर. तो दिस कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट जो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट एंड द डेवलपमेंट पीपल. सी अगर आप ऑक्यूपाई कर रहे हो लैंड तो उनके लिए ऑल्टरनेट तो सोचना बहुत जरूरी है. अदरवाइज दे विल कम नेचुरली. दे उनकी तो जगह वहां रह कब से रह रहे हैं, हम लोग ने इंक्रोच किया उनकी जमीन को. सर एज एन एनिमल साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि एनिमल्स जब हमें अटैक करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उस वक्त, मतलब व्हाट इज देयर फियर, साइकोलॉजिकल बायस? फियर, फियर. फियर. They are afraid of you. They will attack only because of fear. They don't want anything from you because उनका वो आप you're not their food. That is for sure. You're not their food. उनका fear है, डर है कि उनको कि आप उनको मारोगे, इसलिए वो पहले अटैक करते हैं. That is one of the राइट. main thing. अदरवाइज एंड कोई भी डॉग भी आपको देखो, आप उसके पास से जा रहे हो वो डरेगा, डर के मारे आपको अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं अटैक करेगा. आप आगे से आगे आराम से आपके आप खुद ही डर रहे हो, उसको लगे ये डराते मुझे भी डराएगा ये, तो इसलिए आप उसको. तो फर्स्ट थिंग वी टीच एनी हैंडलर ऑल्सो कि डरना नहीं. डरेगा तो तेरे को ऐसे घोड़े पे आप बैठते हो, आप नए राइडर को यही बताया जाता है कि आप डरोगे तो घोड़ा गिरा देगा. उसको पता लग जाता है कि ये नया राइडर है, इसको राइडिंग नहीं आती. सिट फॉर्मली एंड दिस थिंग, तो आपको गिराएगा नहीं घोड़ा, तो गिरा ही नहीं पाएगा आपको. सो दैट्स अ सर फियर. K9 स्क्वाड है आर्मी डॉग्स का, इसके बारे में कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट, द K9 स्क्वाड? Yeah, we have got a number of units in various places, and they are basically composite units, or various type of trade animals are there, and wherever deployed along with the infantry units or wherever that goes, they're they're deployed according to them. जहाँ पर माइन फील्ड्स हैं वहाँ माइन वाले डॉग चले जाते हैं, जहाँ रोड ओपनिंग पार्टी वगैरह जाती हैं वहाँ पर ईडी डॉग चले जाते हैं. जहाँ पर टेरेस का होता है वहाँ पर फिर ये ट्रैकर डॉग्स या असॉल्ट डॉग्स जाते हैं, या कोई किसी घर के अंदर कोई टेरेस पता लग जाता है, तो ऐसे दे कीप ऑन. सर डॉग्स के अलावा जैसे आपने बताया हॉर्सेस भी काफी, घोड़े भी काफी होते हैं आर्मी में, या तो घोड़ों की ट्रेनिंग कैसे होती है और उनको क्या ब्रीड किया जाता है अंदर या लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है बाहर यस, से भी? यस. डॉग हॉर्स की ब्रीडिंग भी, हॉर्स और म्यूल की ब्रीडिंग भी आर्मी खुद ही करती थी. वी हैव टू breeding centers. One is equine breeding center at Babugad, that is near Perat only, ओके. and और एक इक्वाइन ब्रीडिंग स्टड हिसार में. तो वहां पर उनको पैदा किया जाता है अकॉर्डिंग टू म्यूल्स को भी और हॉर्सेस को भी. हॉर्सेस की भी अलग अलग राइडिंग वाले हॉर्सेस और पोलो वाले हॉर्सेस अलग अलग तरह के होते हैं.
ओके उसके ओके। बाद म्यूल्स, म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स हैं हमारे पास। म्यूल्स जो पहले होते थे अभी वो बंद हो रहे हैं। माउंटेन आर्टी के लिए जो बड़े गन्स वगैरह ले जाने के लिए होती थी, आजकल वो बंद हो गई है, बिकॉज आजकल गन्स सेल्फ प्रोपेल्ड आ गई हैं। और जब म्यूल जीएस होता है, जो सामान वगैरह, राशन वगैरह ले जाने के लिए जो काम आता है, उनको भी वहाँ ब्रीड किया जाता है। तो वो हमारा, हम सिर्फ पैदा करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी जो उनकी सर्विसेज हैं वो दूसरा कोर है, एएससी कोर, दे आर लुकिंग आफ्टर दैट। वी आर आपने ओनली सिखाया। गिविंग, हाँ, वी आर ओनली गिविंग, ब्रीडिंग देम एंड गिविंग द टाइम। हम्म हॉर्सेस ट्रेनिंग, इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग इज डन बाय अस एट आरवी सेंटर एंड कॉलेज ओनली। इक्वेस्ट्रियन विंग है अलग से, जहाँ पर इक्वेस्ट्रियन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी होती है। आप अपना शो जंपिंग की और इवेंटिंग की अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें फिर वो कोर्स 11 महीने का कोर्स होता है। वो पहले 6 महीने का होता है, उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग का अलग से 5 महीने का होता है। हम्म। पहले ये कोर्स एक ही होता था 11 महीने का, जो हमने किया हुआ पहले, 11 मंथ्स ऑफ राइडिंग। तो उसमें एक घोड़ा दिया जाता था, एक हाफ ट्रेन दिया जाता था, एक बिल्कुल न्यू हॉर्स दिया जाता था। तो न्यू हॉर्स जो को, यंग कोल्ड को, उसको हमको ट्रेन करना पड़ता था हाफ ट्रेन, हाफ ट्रेन को फुल ट्रेन, और जो फुल ट्रेन हॉर्स होता था दैट फॉर नॉर्मल राइडिंग। हम्म। तो इक्वेस्ट्रियन सर, ट्रेनिंग भी काफी है अभी। सर जैसे कितने इनके भी यूनिट्स होते हैं सर? हॉर्सेस के भी यूनिट्स बना रखे हैं? नहीं, हॉर्सेस के यूनिट्स ऐसे नहीं, दे बेसिकली सेरेमोनियल हॉर्सेस ओनली। 61 ओके। कैवलरी जैसे आपने अभी देखा होगा 26 जनवरी में, यस दैट इज यस, हॉर्सेस, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दैट्स द बॉडीगार्ड। हॉर्स। हाँ, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड अलग है, 61 कैवलरी अलग है। कैवलरी आर्मर्ड की यूनिट है, बट दे आर हॉर्स बेस्ड कैवलरी। दैट द ओनली ओके यूनिट इन द वर्ल्ड, हॉर्स बेस्ड यूनिट। तो उनको घोड़े ओके। देते हैं, पीबीजी को देते हैं, एनसीसी में देते हैं। घोड़े होते हैं उनके पास भी, जो ट्रेनिंग के देने के लिए कैडेट्स को, जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं। तो ऐसे करके ट्रेनिंग है। जी हाँ, तो बाकी ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एनडीए, आईएमए, यहाँ पर घोड़े हैं कैडेट्स को ट्रेनिंग राइडिंग कराने के लिए। ओके ओके। एनिमल्स से रिलेटेड तो हमने लात बहुत खाई है घोड़े की। जब उसकी आपको हॉर्स शोइंग सिखा रहे थे, ओके। तो एक व्हेन आई वाज डूइंग वाई यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है जो, तो उसमें हमको हॉर्स शोइंग सिखा रहे थे कि हॉर्स की स्विंग कैसे की जाती है। तो आपको पता होगा तभी आप चेक करोगे ना कि यार ठीक कर ही नहीं की। हम्म। तो मैं उसके सामने, मैं पकड़ के खड़ा था ऐसे हॉर्स, तो उसने फटाफट वो गरम नाल लेके आया और उस पे लगा दी उसने फट से। आई वाज नॉट डूइंग की ऐसे वो, तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग पीछे। तो उससे बहुत जोर से लात मारी इधर, जस्ट ऑन माय दिस थिंग, एंड आई फेल फ्लू 10 to 12 फीट दूर। तब वो उस्ताद आके बोला, साहब घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कभी भी नहीं जाना। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। दैट इज सर। और मतलब आपका जो आर्मी टेन्योर रहा है उसमें आप कुछ जो आज आज के यूथ को कुछ अगर मैसेज हाँ, देना चाहते हो, कुछ उनको अपना बी अपने एक्सपीरियंस है कि क्या? जी सर। the best only thing which I can say is be sincere with your work. Sincerity pays, and be kind. Be sincere and be kind. It will come. You will love it when the things come back to you in that similar form. You will like it. एंड सिंसेरिटी के अलावा कोई काम, आपके अपने काम जो भी आपको काम करना है, या करते हो या कर रहे हो, या आपको मिला है, उसको सिंसियरली करो। बिना जो आपको सुपरविजन में करोगे काम, वो काम नहीं है, वो तो आपको जबरदस्ती का आपको कर रहे हो। तो sincerity comes when you do work properly and do it sincerely and kindly. That is what I feel it is the best thing one can do. And anything, sir, to end this animal cruelty thing also, that थोड़ा सा अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगी किस तरह से हम एनिमल्स को भी एक एम्पथी के साथ देखना है, ताकि उनको भी उस तरह से ट्रीट करना है, तो वो आप एक क्या एक थोड़ा मैसेज देंगे अगर कि एनिमल हाँ, क्रुएल्टी को एंड करने के लिए? animals have also got the same kind of feelings as humans have. Horses have got good memory. You see, all these animals have got something specialized which to them with them. They have got all the same feelings. They also cry. They also feel pain. So we should have be very empathetic to the animals, and not don't harm them. That they have that feeling that what is this two-legged animals treating us.
So we should be very empathy with them. We have all the care, all the love, whenever we possible we should give. Especially the आज हमारे I see so many टोंगा वालास अभी तो बहुत कम रह गए हैं but ठेले वाले they really are cruelty is a very short thing for them. I have treated them कई बारी ठेले वाला मेरे पास सामान लेके आया मैंने कहा तुम घोड़े को इतना सा है इसको इतना सारा सामान लदा हुआ है वो कैसे करेगा सब I have to live I have to this is my livelihood but they don't have any empathy for that animal उसके सामने थोड़ा सा दाना डाल दिया that's all so that way we should have some little tough laws with this thing for this maintaining this animal wealth Wonderful, sir. स्पेशली जैसे Wonderful. गाय वगैरह Yeah. भी हैं को लेके घूमते रहते हैं कि साधु खाना देते नहीं है आई मीन आई हैव सीन सो मेनी टाइम इसको रोटी दे दो इसको कुछ भी दे दो आई मीन दैट वे आई मीन आई फील वेरी बैड कि these kind of people are there who are living on them but not looking after them. Yeah, that is ऐसा I think ये थोड़ा सा एक इंसानी कैरेक्टर ही है. We become Yes, too take things for granted also. वही है yes, sir. Like you said, if you can be anything in the world, be kind and be yes, kind to the animals as well. as well, And yes. yes, yes, sir. So thank you so much for your beautiful insights into how आपने काफी कुछ बताया हमें कि आर्मी में डॉग्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, किस तरह से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपने रिकाउंट किए. So it was really lovely talking to you, sir. Thank Learning you from so your wealth of experience, sir. thank you And so much, Jojo. any Thank you any so much. It concluding was any wonderful. concluding message for the aspiring defense as well as other aspirants as well as Yeah, general public? it's a lovely thing to join army, to be a vet, and then be a part of the Indian Army, which is wonderful organization, wonderful organization. I have really loved it. I have really had a very good innings with the army, and I'd love to be again go to army. I don't mind going again and again. And as a veterinarian, it's all the more good for us. And young veterinarian who want to join, please do join do well and things are going on very well and this will carry on besides modernization of Indian Army this will RVC will remain because it all the big armies have veterinarians in the army so they cannot go away go without it. So thank you so much, sir, for sharing your pearls of wisdom with us. Thank you And so much. the audiences, you can always contact sir if you have any queries with respect to joining the Yeah, Army Veterinary Corps. And yes. ladies and gentlemen, thank you so much. This was our special